السلام علیکم ناظرین، خبر اور حقائق کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا نائب صدر بنانے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے اراکین نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کو پارٹی کا نائب صدر بنانے کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں باضابطہ درخواست جمع کروا دی ہے۔ الیکشن کمیشن میں مریم نواز کی تعیناتی کے خلاف درخواست پی ٹی آئی کے وزرائے قومی اسمبلی فاروق حبیب، کنول شوذب اور جویریہ ظفر کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں مریم نواز کی بطور نائب صدر تقرری کے پاکستان مسلم لیگ نون کے فیصلے کو آئین و قانون سے متصادم قرار دیا گیا ہے۔ درخواست میں ان تمام قانونی بنیادوں کو شامل کیا گیا جن کے تحت مریم نواز کسی بھی سیاسی اور عوامی عہدے کے لیے نااہل ہیں، اور اس میں عدالت کے فیصلوں کا تفصیلی ذکر بھی موجود ہے۔ الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی درخواست میں یہ کہا گیا کہ احتساب عدالت نے رہنما نون لیگ کو عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ پارٹی عہدہ نجی حیثیت کا حامل نہیں ہوتا، سیاسی جماعتوں کا پورے سیاسی نظام پر اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ پارٹی صدر کی عدم موجودگی میں مریم نواز قائم مقام صدر کے اختیارات استعمال کریں گی۔ اس میں مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ نواز شریف کو بھی پارٹی عہدے کے لیے نااہل قرار دے چکی ہے۔ اس طرح مریم نواز کو عہدہ رکھنے کی اجازت دینا نواز شریف کو اجازت دینے کے مترادف ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کاشف بشیر خان صاحب، اینکر پرسن تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام بٹو صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا نائب صدر بنانے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا ہے، انہوں نے درخواست جمع کروا دی ہے۔ اس چیلنج کرنا اور اس فیصلہ جو مسلم لیگ نون نے کیا، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات سنیں، مسلم لیگ نون تو ہمیشہ سے، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا آن چارجز آف میگا کرپشن بائی سپریم کورٹ، اس کے بعد بھی انہوں نے اس کو جو ہے مسلم لیگ نون کا پریزیڈنٹ بنا دیا تھا۔ جی، تو وہ شروع سے یہ چاہتی ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ، اسپیشلی کورٹس کے ساتھ کنفرنٹیشن کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ سیم ہسٹری ریپیٹ کی گئی ہے کہ مریم نواز شریف جو کنوکٹڈ ہے اور جو ڈسکوالیفائی کی جا چکی ہے بائی سپریم کورٹ آف پاکستان کہ وہ اپنی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی ہے، اس کو وائس پریزیڈنٹ بنانا میرے خیال میں سوئے ہوئے شیر کو جگانے کی بات ہے۔ دیکھیں، کورٹس کو میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید کورٹس اس کے اوپر سو موٹو کو لیں، لیکن ثاقب نثار صاحب کے جانے کے بعد سو موٹو کا کچھ چلن کم ہو گیا۔ تو بہت اچھی بات کی ہے، یہ بالکل جو ہے الیکشن کمیشن میں بنتا تھا، لیکن جو کرتا دھرتا ہے جی، مسلم لیگ نون کے، ان کو دیکھیں اس میں شرم آنی چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں، یہ سارا رول آف لا کی بات جب ہم کرتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو کہ 3-4 دفعہ جس کا ہیڈ جو ہے حکمران بھی رہا ہے، پرائم منسٹر جی، پاکستان بھی رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ایسی بات کرتے ہیں تو یہ باعث شرم ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور ان کے فالوورز کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف کو بالکل اس کا کوئی پلیس نہیں ہے اس پالیٹکس میں، جس سے ڈین لیگز کو آپ دیکھ لیجئے، اور جو ان کا سو کالڈ بیانیہ تھا میاں نواز شریف کا اور مریم نواز شریف کا، کہ جو مجمع میں وہ جو کہتی تھیں کہ، اور جو جس طرح سے عدلیہ کو اور فوج کو وہ میں لائن کرتی تھی، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ڈیسیژن ہے اس سے کوئی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا پاکستان کی سیاست میں، جس میں پہلے ہی بہت پولرائزیشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو ہے وہ تقریر کی۔ ملک میں پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت چل رہی ہے، کافی اس نے تنقید کی ہے اس پر۔ بٹو صاحب دیکھیں، ان کا جو سٹانس ہے اس کے اوپر دو رائے ہو سکتی ہیں، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ دو رائے ہو سکتی ہیں، کچھ چیزوں میں وہ کہنے میں حق و جانب بھی ہیں۔ جی، اس حکومت کے ساتھ بہت ہوپس تھیں لوگوں کی، بہت وعدے کیے گئے تھے، چینج کی بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ آئی ایم ایف کے جب لوگ ہیں، جب وہی گھسے پٹے لوگ لا کے آپ جب بٹھائیں گے تو پھر اپوزیشن تو یہ بات کرے گی۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں، اس وقت مہنگائی، اس وقت مسئلہ جو ہے مہنگائی ہے۔ ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کی گورنمنٹس کو کرٹیسائز کیا جی، کہ عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ٹھیک تو ہے۔ آج اگر عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی یہ ہو تو ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو بالکل ان کو روکنا چاہیے، نشاندہی کرنی چاہیے، جو ہم ماضی میں بھی کرتے رہے۔ تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ شبر رضوی کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے جی، کہ وہ ایک سی اے کی فرم چلاتے ہیں، اس کے وہ چیئرمین ہیں،
और उनको FBR का जो चेयरमैन बनाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये 22 करोड़ की आबादी में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सिंसियर लोग हैं, बहुत कैलिबर के लोग हैं। ये कुछ मखसूस लोगों के ऊपर आके हुक्मरानों की जब सुई अटक जाती है जी जी, तो वो शकूक और शुबहात पैदा करते हैं। ठीक है, तो अगर यही बयानात जो हैं, अगर ये आसिफ अली जरदारी ने दिए होते तो मेरा स्टांस और होता। ठीक है। लेकिन मैं समझता अच्छा, हूँ दूसरा कि ये बार बार ये कहा जा रहा है पीटीआई की दूसरा पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ये जो आईएमएफ के साथ हुकूमत मुआहदा करने जा रही है, जो डील हो रही है, उस पर इस डील को, इस मुआहदे को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया जाए। अगर पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करवाया जाएगा तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस मुआहदे को मानने से इनकार कर देगी। और भट्टो साहब, ये माजी में भी होता रहा है। बात ये है कि होना तो पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए था, लेकिन पार्लियामेंट कभी भी सुप्रीम रही नहीं है। पार्लियामेंट को बेतुकीर इन सियासतदानों ने किया। तो उस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि जो एक ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा। IMF के जो हमें जंगल में फंसा गए, वो तो माजी के हुक्मरान जो हैं वो बहुत बुरी तरह फंसा गए हैं, और उसको जाहिर है कि उसका जो है उसका असर जो है वो इस हुकूमत पे भी पड़ना था, इमरान खान की गवर्नमेंट पे भी ठीक है, पड़ा है और पड़ना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनकी भी, मुझे लगता है कि उनके जंगल से छुड़ाने की कोई तैयारी बज़ाहिर नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि 8-9 माह में जो कुछ हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, और या इमरान खान खुद है, वो लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं। ठीक और है। वो आने वाले जो दिन हैं, आने वाले साल हैं, उसमें इंशाल्लाह वो मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमें डेफिनेटली एक बात जो है अपने व्यूवर्स को बताने की जरूरत है जी जी, कि 27 से 28 खरब रुपया जो है इसी गवर्नमेंट ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने IMF और वर्ल्ड बैंक को वापस भी किया है। अच्छा। उसका नाम कोई नहीं लेता है। जो उन्होंने कर्जे लिए थे, इन्होंने वापस भी किए हैं। अच्छा उसका इकदाम क्रेडिट है इनको जरूर जो देना वापस किया चाहिए। गया है। बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब हमारे साथ में थैंक यू वेरी मौजूद मच। थे, और हम बात कर रहे थे मरियम नवाज़ को मुस्लिम लीग नून की तरफ से नायब सदर बनाने का मामला, और उसके बाद PTI की तरफ से उसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करना। दरख्वास्त में ये मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज़ की बतौर पार्टी नायब सदर तैनाती का लदम करार दे। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करने के बाद PTI के रुकन कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में क़यादत का फुकदान है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले चाहते हैं पाकिस्तान में रावण का कानून नाफिज किया जाए। फ़ारूक हबीब ने यह भी कहा कि पनामा रानी का खिताब दिया उन्होंने, मरियम नवाज़ साहिबा को नायब सदर का ओहदा नहीं रख सकती हैं। ज़बरदस्ती के टेस्ट ट्यूब लीडरशिप नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि हर मौके पर शरीफ ख़ानदान को पसपाई का सामना करना पड़ा है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज़ की बतौर पार्टी नायब सदर तैनाती को गैर कानूनी करार दिया था। 3 मई को पार्टी के सदर मियाँ शहबाज शरीफ ने कायद नवाज शरीफ से मंजूरी के बाद पार्टी के मरकजी अहदेदारों के नामों का ऐलान किया, जिसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के सीनियर नायब सदर जबकि हसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया था। मुस्लिम लीग नून ने 16 नायब सदूर का नामों का ऐलान भी किया था, जिनमें मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ भी शामिल थे। याद रहे कि 6 जुलाई 2018 को शरीफ खानदान के खिलाफ नैब की जानिब से दायर एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 साल, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल, जबकि दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड 1 अरब 10 करोड़ रुपए से ज़ायद और मरियम नवाज पर 20 लाख पाउंड 30 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना भी आयद किया था। इसके अलावा एहतसाब अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए लंदन में कायम एवन प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म भी दिया था। उसके बाद सितंबर की बात करें 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की सज़ाओं को मुअत्तल करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म भी सुनाया था। बात करें मुल्क में PTI की नहीं बल्कि PTI IMF की हुकूमत है, ये कहना है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए ये कहा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में होने वाले इजलास के दौरान तकरीर करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से कहना चाहता हूँ कि जब तक इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड IMF से होने वाले मुआहदे को पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करवाया गया तो आवाम इस मुआहदे को नहीं मानेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास ना कोई मनसूबाबंदी है, ना ही कोई विजन है। आवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं और हुकूमत की नाअहली की सज़ा भुगत रहे हैं। भुट्टो जरदारी ने कहा
کہ मौजूदा हुकूमत के दौर में किसानों, मजदूरों, ताजरों, गरीब अवाम और पेंशनर्स का मुआशी कत्ल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कराची से तजावुजात के खात्मे का टास्क वज़ीर आला को सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की फुटपाथों से तजावुजात और दिफाई इदारों के दस्तरखान ख़त्म करने का टास्क वज़ीर आला सिंध को सौंपा है और कराची मास्टर प्लान की बहाली से मुताल्लिक़ केस की इस्तमाद सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में हुई। इस मौके पर अदालत ने शहर कायद से तजावुजात ख़त्म कराने का टास्क वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सौंपते हुए हुक्म दिया कि वज़ीर आला तमाम इदारों के साथ मिलकर मसाइल को हल करें और जायज़ा लें। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध को हुक्म दिया कि तमाम फ़रीक़ैन की मुशावरत से शहर को असल शक्ल में बहाल करा के रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने शहर भर की फुटपाथों से तामीरात ख़त्म कराने का भी वज़ीर आला सिंध को हुक्म देते हुए कहा कि फुटपाथों से जो दिफाई इदारों के दस्तरखान हैं और जो शेड्स भी हैं उनको फौरी ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अस्पतालों के सामने खाली प्लॉट्स पर एम्बुलेंस के लिए ज़ेर इस्तेमाल ज़मीनों को भी खाली कराने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामिया को शहर भर में रोड लाइन्स और क्रॉसिंग और साइन बोर्ड लगाने की भी हिदायत की है। और इसके बाद हम बात करें आसिया बीबी के हवाले से। आसिया बीबी एक आज़ाद शहरी हैं और वो अपनी मर्ज़ी से मुल्क छोड़ कर गई हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने ये बयान दिया है और इस्लामाबाद तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल ने तौहीन रिसालत केस में बरी होने वाली मसीही खातून से मुताल्लिक़ कहा है कि आसिया बीबी आज़ाद शहरी हैं और उन्होंने कहा कि हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कि डॉक्टर फैसल ने बताया कि भारतीय फ़ौज ने शोपियां में 3 कश्मीरियों को शहीद किया। मकबूजा कश्मीर साफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन इलाका है। आसिया बीबी से मुतल्लिक़ सवाल पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ये भी कहना था कि आसिया बीबी आज़ाद शहरी हैं, वो अपनी मर्ज़ी से मुल्क छोड़कर चली गई हैं। डॉक्टर फैसल ने मज़ीद कहा कि लीबिया की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई गैर यकीनी है। पाक मिशन ने लीबिया में पाकिस्तानियों को गैर ज़रूरी सफ़र से मना किया है। अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ भी उन्होंने लब कुशाई की कि अफ़गान मसले का बातचीत के ज़रिए सियासी हल की हिमायत करते हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं है। ट्रंप की बात करें तो ट्रंप का चीन पर तिजारती मुआहदा तोड़ने का इल्ज़ाम है। चीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था, अब उसे उसकी कीमत चुकाना होगी। एक खुलेआम उन्होंने एक धमकी भी दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर तिजारती मुआहदा तोड़ने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान चीन के इस बयान के बाद सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर अमेरिका ने चीनी अशिया पर टैक्स आयद किए तो उसके जवाब में ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। अमेरिकी सदर ने जुमा को 200 अरब रुपए की चीनी अशिया पर डबल से ज़्यादा टैक्स आयद करने का ऐलान कर रखा है। एक तरफ दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे की अशिया पर टैक्स आयद करने के बयान दागे जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब दोनों ममालिक के दरमियान अमेरिका में तिजारती मुज़ाकरात भी जारी हैं। अमेरिका में चीन के वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म कर रहे हैं, जिन्हें चीन में एक ताकतवर ओहदेदार के तौर पर जाना जाता है। चीनी हुकाम से मुज़ाकरात से कब डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, अब उन्हें उसकी कीमत चुकाना होगी। ख्याल रहे कि 2018 में अमेरिका ने चीन की अशिया पर 250 अरब डॉलर के टैक्स आयद किए, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी अशिया पर 110 अरब डॉलर के टैक्स नाफिज किए हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।